All right, guys. So welcome back to, and this is our third session. आपने साथ साथ ये भी note करते जाना है. It's the third session. So love is blind. So what is the figure of speech here? Personification. Yes, because blindness is a quality, so that is personification. Acha, dash, it was raining. I still walk to school. I still walk to school. So accordingly, although, furthermore, you consequently. Although it was raining. ठीक है. जहाँ पे कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आया तो आप फिर पूछ लीजिएगा. डॉक्टर gave me a dash. सर हमें किस तरह पता चलेगा, या although आएगा या कोई और आएगा? अब ये देखें ना. ट्रांजिट. अच्छा, अब देखें although it was raining. अब देखें two different. Although is a transitional device of contrast. ठीक है. There are two different scenarios that are linked together. ठीक है. One thing is that it was raining, and when it is raining, most of the times we don't walk to school. ठीक है. Yes, अब यहाँ पे होता है ना कि अगर यहाँ पे होता कि I did not, ठीक है, I did not walk, फिर did not के साथ walk ed नहीं आएगा, I did not go to school, तो फिर क्या होगा? Because it was raining. Because it was raining, I did not go to school. तो हम क्या है, पूरे सेंटेंस की एक पूरी सेंस जो है वो हम समझते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है. तो because it was raining, I did not go to school. तो फिर because क्या बन जाएगी? ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ रीजन बन जाएगी. yes, ठीक है. अच्छा, तो इस तरह से हमें पता yes, चलता है. उसके बाद डॉक्टर गेव मी डैश. डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर ना तो नोट देते हैं, ना रेसिपी देते हैं, ना रिसीट देते हैं. डॉक्टर बेसिकली प्रेस्क्रिप्शंस देते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ यूज ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब. तो पिछले में हम लोग यही इस पे हमने काफी डिटेल डिस्कशन की थी. तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. उस्मान सोल्ड हिज ओल्ड बाइक. ठीक है. तो अब इसमें क्या है कि his old bike जो है, that is the verb, that is the object here. Object. ये object है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? Transitive verb हो जाएगा. मुनव्वर kicked the football. तो football आपके पास object मौजूद है. Object. And she left the keys on the table again the same time. Table object. तो इसमें नहीं, keys जो है, that is the On the table. Keys. keys. जी सर सर. यहाँ जी बेटा. सर यहाँ पे एक और ट्रिक भी है ना कि जिस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होता है उस सेंटेंस को हम पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते. Yes, ये भी है. That is true. ये जो intransitive verbs होते हैं उनका हम पैसिव नहीं बना सकते. ठीक है. अच्छा, उसके बाद the horse galloped wildly. तो अब इसमें gallop जो है, that is the verb, and wildly is basically the manner. ठीक है, कि किस तरह उसने gallop किया. तो that is basically the intransitive verb, कि इसका हमारे पास object नहीं है. ठीक हो गया. अच्छा, फिर उसके बाद I cannot help you with your homework because I am not very good at geometry. Dash, I know someone who can. ठीक है. तो क्या होगा? However. सर contrast है ना ये. However. Yes, however. Transitional device of contrast. तो because इसमें क्या है? That is reason. ठीक है. अच्छा, sonnet क्या है? Sonnet is an example of what? Sonnet is an example of poetry. Sonnet क्या होती है? Sonnet is basically a 14 lines poem that follows a structure. 14 lines हो और एक structure में हो, proper उसकी एक rhyming scheme हो, तो that is basically that is called a sonnet. So sonnet is an example of poetry. ठीक है. अच्छा, उसके बाद how happy is he here. तो अब इसमें कौन सी poetic device है? alliteration. Alliteration is the repetition of the same word or same sound. अब इसमें H जो है, H is repeated. How happy is he here. So that is alliteration. Yes. अच्छा, फिर उसके बाद I felt an intolerable sorrow. ठीक है. Intolerable. तो intolerable का मीनिंग क्या होगा? Unbearable. Unbearable. ठीक है. एक ऐसी चीज जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते. बर्दाश्त नहीं कर सकते. टॉलरेबल, bearable, they are synonyms, और intolerable, unbearable, ये क्या हो जाएंगे? ये synonyms हो जाएंगे. So unbearable is the correct option. उसके बाद it has been an extremely brutal summer. ठीक है. अब yes, ना तो windy हो सकता है, ना gentle हो सकता है, ना pleasant हो सकता है. So the synonym is what does the word do? अब यहाँ पे जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपने इस चीज का, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, तो you have to make it sure कि आपसे synonym पूछा जा रहा है या antonym पूछा जा रहा है. कहीं ऐसा ना हो कि आप ब्रूटल देखें और आप जैसे यहाँ पे इनटॉलरेबल था या कोई भी इस तरह का वर्ड हो सकता है, आपने सिनोनिम लगाना और आप एंटोनिम पे ऑप्शन लगा दें, और आप या आपने एंटोनिम पे लगाना और आप सिनोनिम पे लगा दें. तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है.
उसके बाद he is interested in learning. yes he is In learning. In learning English. अच्छा, फिर उसके बाद select the plural form of the word illuminous. तो illuminous का Alumni. क्या होता है? alumni. ठीक है, अच्छा, जिस तरह फंगस का आप पढ़ते हैं Fungi. फंजाई, उसको आप बोलते हैं, फंगाई बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं। तो these are basically the Greek words. ठीक है, अच्छा, उसके बाद the students are best friends. These students are best friends and they plan to go to college together. अब इसमें the Compound students sentence. are best friends. That is the सर दो इंडिपेंडेंट है ना, दो yes, इंडिपेंडेंट that is the first क्लासेस। independent clause. And आपके पास Coordinating conjunction. Coordinating conjunction. yes, and they plan to go to the college together. That is the second independent clause or the main clause. Independent So when clause. two independent clauses are joined together with the help of a coordinating conjunction, so that is basically a compound sentence. Compound sentence. Okay, my sister is very kind and generous person. Dash, she helps me with my homework and drives me to the basketball practice. तो क्या आएगा? Likewise, additionally, या as a result, या for example. For For example. example, यहाँ पे जो उसने Reason- कहा है ना कि काइंड एंड जनरस, तो अब उसकी अपनी सिस्टर की Reason नहीं काइंडनेस है या अपनी सिस्टर की जो जेनरोसिटी है, उसको फर्दर क्या किया जा रहा है? एक्सप्लेन किया जा रहा है। जी अहमद बेटा, अहमद मोहम्मद नबील जी बच्चे। वाले में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं है क्योंकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के लिए जरूरी होता है कि यू मस्ट हैव एट लीस्ट टू मेन क्लॉजेस and with that you should be having at least one and it can be more than one as well, at least one or more than one subordinate clauses. तो इसमें हमारे पास दो main clauses तो हैं लेकिन साथ में कोई subordinate clause नहीं है, so that is why this is a compound sentence and not a compound complex sentence. ठीक है, अच्छा, let's move ahead. Tanya is older dash Tanya is older than Sarah. अब इसमें यहाँ से आप देखेंगे ना, तो यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि देन वाले हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? दो। तो ये वाला इससे फौरन से एक्सक्लूड हो जाएगा और ये भी इसमें से क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पे जी ये AN और EN में क्या फर्क है? देन और देन में? देन जो है ना THEN, ठीक है, दैट इज अ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ बाद में। सीक्वेंस। ठीक है, दैट इज अ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस। और ये वाला जो देन है, that is that is used Comparative degree. yes, that is of a adjective. कंपैरिजन करने के लिए। जी ठीक सर। है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या पूछता हूँ, who asked the question? क्वेश्चन किसने पूछा था? फुरकान। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि फुरकान ate a pizza full stop then he slept, तो अभी ये जो then है ना, that is basically वो सीक्वेंस जो था उसको उसके बाद या देन आफ्टर दैट, ठीक है, फिर। और जो दूसरा होता है देन, दैट इज फॉर द कंपैरिजन, वो उसका सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, सो आई एम नॉट राइटिंग गिविंग यू एनी एक्स्ट्रा एग्जांपल। ओके, तानिया इज ओल्डर देन सायरा व्हाइल रेशम इज the oldest. the oldest, because with the third degree of adjective या जो superlative degree of adjective होती है उसके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? the लगाते हैं, the best। ठीक है, you are better but Ahmad is the best। ठीक है, Yes. ओके। और वैसे भी एन इसलिए भी नहीं आ सकता ना, क्योंकि देखें एन तो हम तब लगाएंगे ना कि जब हमारे पास यहाँ पे क्या हो, हम कोई कंपैरिजन ना कर रहे हो, बल्कि हम एक रैंडम सेंटेंस स्टार्ट करें, जैसे एन ओल्डेस्ट। ठीक है, एन ओल्डेस्ट मैन विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, सो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वी कैन यूज द इंडेफिनिट आर्टिकल। अच्छा, उसके बाद वुड यू माइंड डैश द गेट? Close the gate. Yes, would you mind closing भी आ सकता है, would you mind closing the Imperative sentence. yes, would you mind to close the gate या would you mind closing the gate? अब इसमें honestly speaking I personally feel like कि ये दोनों ठीक हैं, because जो होते हैं आपके participles होते हैं और जो infinitives होते हैं they are used interchangeably। ठीक है, अच्छा, Yes. but यहाँ पे क्या है? would you mind dash the gate? ठीक है, would you mind, I personally feel कि would you mind closing the gate जो है, it would be more Both options are correct, sir. both options are correct, yes, to close भी और to closing भी, both options are correct। चलें आगे चलते हैं, quickly हम जो है वो इसको करते हैं। अच्छा, went from dawn to dusk। ठीक है,
तो अब ये क्या है, दैट इज एंटीथीसिस। एंटीथीसिस में क्या होता है कि आप जो है वो तो जो दो पैरेलल जो ऑपोजिट्स होते हैं उनको आप एक सेंटेंस के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग टू इवनिंग, डॉन टू डस्क, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, तजाद, सनत तजाद। यस तजाद, सनत तजाद उर्दू में इसको बोलते हैं, सनत तजाद। आगे आपका उर्दू का भी सर पेपर है। ऑक्सीमोरॉन भी इसे कह सकते हैं। ऑक्सीमोरॉन जो होता है ना वो बेसिकली उसमें वो सनत तजाद नहीं होती। ऑक्सीमोरॉन जो है ना वो उसमें ये होता है कि यू यूज टू ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर फॉर वन थिंग एंड द पर्पस इज जस्ट टू ब्यूटिफाई लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करने के लिए। जैसे अगर आप कहते हैं ना कि बर्निंग आइस, ठीक है, स्वीट नॉइस। स्वीट नॉइस, यस स्वीट नॉइस भी आप कह सकते हैं। विजिबल डार्कनेस, सर ये एंटीथेसिस के बारे में दोबारा बता देना ये। बेटा एंटीथीसिस देखें, थीसिस में आप क्या करते हैं, थीसिस में आप एक बात करते हैं। एंटीथीसिस ये होता है कि एक बात आप कर रहे हैं और उसी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप जो तजाद है यानी कि जो टू ऑपोजिट्स हैं उनको यूज करते हुए आप एक पूरा कॉन्सेप्ट देते हैं। एंटी अगेंस्ट। यस अगेंस्ट, ठीक है, फ्रॉम डॉन टू डस्क यानी सुबह से लेकर शाम तक। ओके, थीसिस क्या होगा सर? ये एंटीथीसिस और पैराडॉक्स में क्या फर्क है? एंटीथीसिस और पैराडॉक्स में बेटा फर्क ये होता है कि जो पैराडॉक्स होता है ना, पैराडॉक्स उसमें आप टू ऑपोजिट्स को लेकर आते हैं और आप एक के जरिए दूसरे को एम्फसाइज कर रहे होते हैं। सर ये पैराडॉक्स एग्जांपल में देता हूं, जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, ठीक है, एंड यस सर, आगे क्या होता है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। यस, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अब इसमें आप हो सकता है यूनिटी की एग्जांपल, यूनिटी को एम्फसाइज करना चाह रहे हो, या हो सकता है कि आप जो है वो डिवीजन को एम्फसाइज करना चाह रहे हो। लेकिन उसमें एक चीज आपका फोकस होता है। अगर आप यूनिटी की बात कर रहे हैं तो भी आप ये कहते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, और अगर आप कह रहे हो डिवीजन के ऊपर बात कर रहे हैं तो भी आप ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, तो अब पैराडॉक्स में क्या होता है, पैराडॉक्स में यू जक्सटापोज, यू कंजॉइन, यू कनेक्ट टू ऑपोजिट्स, बट द पर्पस इज कि एक के जरिए दूसरे की आप जो है वो दूसरे को आप वाज़ेह करना चाह रहे होते हैं। जबकि जो एंटीथीसिस होता है उसमें दैट इज just to maybe draw a borderline or to provide information in a way कि जिसमें दो opposites जो हैं वो parallel चलते हुए आपको क्या कर रहे होते हैं, information provide कर रहे होते हैं। सर मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एंटीथीसिस जो है वो पैराडॉक्स का सिंपलीफाइड वर्जन है? नो, नहीं कह सकते। उसकी रीजन ये कि जब आप कहते हैं ना कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यस सर, आई लुक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो अब ये क्या है, ये एंटीथीसिस है, ये एंटीथीसिस है। अगर सर ये कहूं कि मैं लेस इज मोर, ये लेस इज मोर, लेस इज मोर, यस सर। सर ये पैराडॉक्स की एग्जांपल है। हाँ सर ये तो पैराडॉक्स की एग्जांपल है ना। पैराडॉक्स की एग्जांपल ये तब बनेगी जब आप कहते हैं ना कि लेस इज मोर एंड मोर इज लेस। ओके सर, तो फिर वो पैराडॉक्स की एग्जांपल बनेगी। ओके सर, ठीक है, गॉट इट? यस सर। अच्छा, उसके बाद माय डॉग एंजॉयज बीइंग बेथ्ड डैश हेट्स गेटिंग हिज नेल्स ट्रिम्ड। अब ये वैसे यहाँ पे डॉग की बात हो रही है, लेकिन ये मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी बेटी की बात हो रही है क्योंकि उसको भी बाथिंग बहुत पसंद है, लेकिन उसके नेल्स काटने हो तो इट्स लाइक फाइटिंग अ वॉर। अच्छा, माय डॉग एंजॉयज बीइंग बेथ्ड बट हेट्स, अब देखें ना एंजॉयज है और फिर उसके बाद क्या है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है हेट्स। तो फिर दिस मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, सर ये एंजम्पमेंट क्या होता है? एंजम्पमेंट बेसिकली होता है आप ना एक आपने लाइन लिखी है और उसी लाइन का जो लास्ट वर्ड है, ठीक है, उसी को आप आगे कंटिन्यू करते हैं। एंजम्पमेंट ना बेसिकली अगर ये वैसे टेक्निकल टर्म है, आई डोंट नो कि अभी 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये चीज समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा। आप एक पोएम लिख रहे हैं ना, पोएम, और वो आपकी पोएम जो है वो एक फ्री वर्स में पोएम है। जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को तो ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन 9th 10th में आप सर ये इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, तो इसको आप स्किप कर दें। हाँ, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। एंजम्पमेंट ये होता है कि आप एक पोएम लिख रहे हैं और उस पोएम के अंदर ना लाइंस को आप जानबूझ के तोड़ते हैं, दैट इज एंजम्पमेंट। ठीक है, लाइंस का स्ट्रक्चर जो है वो आप उसको ब्रेक करते जाते हैं, सो दैट इज एंजम्पमेंट, सो यू कैन स्किप दिस।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सम बर्ड्स। अब ये आपका ना एमसीक्यूज के ऊपर ये लास्ट सेशन होगा, इसके बाद आगे फिर हम एमसीक्यूज पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फिर आगे आप देखें कि अराउंड 60 मार्क्स का हमारा जो पेपर है वो रहता है। अच्छा, सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन इनकॉन्स्पिशियस स्पॉट्स। अब अगेन वो जो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि हम कैसे मीनिंग ढूंढते हैं इस तरह के वर्ड्स का। अब लाजमी नहीं है कि ये वर्ड वहां पे आपको आएगा, और शायद नहीं ही आएगा, 100% ये वाला एमसीक्यूज नहीं आएगा, लेकिन इसी तरह इससे मिलते जुलते आएंगे। तो अब आप कैसे इन इनकॉन्स्पिशियस का जो मीनिंग है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेल हिडन बाय लीव्स। अब वेल हिडन का वर्ड जो है ना, ये बेसिकली आपको एक कॉन्टेक्चुअल क्लू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वेल हिडन का मतलब क्या होगा? प्रोमिनेंट, छुपा हुआ। छुपा हुआ। क्या वेल हिडन जो है, अगर आपने मीनिंग डिड्यूस करना है इनकॉन्स्पिशियस का, तो क्या प्रोमिनेंट होगा? नो। नो। नो सर। अच्छा, फिर उसके बाद सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन इनकॉन्स्पिशियस स्पॉट वेल हिडन बाय लीव्स। तो क्या वो आइसोलेटेड हो जाता है? नेवर। नो सर। नो। सर क्या वो डिस्क्रीट होता है? डिस्क्रीट तो एक No. ऐसी चीज होती है कि जो बिल्कुल मतलब नजर भी ना आ रही हो। तो नो सर, ऐसे भी नहीं होता। ऐसे भी नहीं होता। तो इनकॉन्स्पिशियस मींस अननोटिसेबल, ठीक है। सो अननोटिसेबल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यस। अच्छा, उसके बाद which one of the following sentence has a use of infinitive verb? ठीक है, अब ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। He played hockey brilliantly। तो अब इसमें क्या है? इसमें मेन वर्ब है, इसमें आपके पास कॉन्क्रीट वर्ब है, played। The dragons fight fiercely, तो fight इसमें आ गया। I made him learn tenses। तो अब इसके अंदर है इन्फिनेटिव वर्ब। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसमें कौन सा वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब है? लर्न learn, Okay, good. Sir, Learn is the infinitive verb. अच्छा, they have been playing is सर मेड अच्छा, सर अब मेड कॉज वर्ब होगा ना? हाँ, causative। अब ये सर मेड जी, कॉजेटिव वर्ब होगा। यस, यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना था। यहाँ पे made जो है दैट इज causative verb, ठीक है। इस वर्ब को क्या बोलते हैं? causative verb। के उसमें जो काम है वो क्या हो रहा है? काम तो हो रहा है लर्निंग टेंसेस वाला, लेकिन आप उस काम को जैसे ना ही मेड मी डू दिस, ठीक है, ही मेड मी, कि उसने मुझे ये काम करने पे मजबूर किया। अब दैट इज समथिंग दैट एक्चुअली दैट एक्शन बिकेम अ कॉज फॉर अनदर एक्शन दैट यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। ठीक हो गया? अच्छा, अब Yes, sir. इन्फिनेटिव्स की यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग Yes, sir. टाइप्स भी देख लेते हैं, इन्फिनेटिव की टाइप्स, क्योंकि इस तरह का भी बात दफा आपसे क्वेश्चन आ जाता है। अब तो ये कौन सा ऐसा? इन्फिनेटिव को दोबारा एलिब्रेट कर देना। जी बेटा, इन्फिनेटिव को दोबारा एक दफा एलिब्रेट कर देना। मैं वही करने लगा हूँ। मैं टाइप्स इसलिए बताने लगा हूँ ताकि आपको टाइप से इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए। जी, कौन ऐसा शहजादा है या शहजादी है क्लास में जो मुझे बताएगा कि ये कौन सा इन्फिनेटिव है? सर बेयर इन्फिनेटिव। यस, bare infinitive. यस। बेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं? जस्ट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज मेंशन्ड विदाउट टू, ठीक है। जैसे यहाँ पे लर्न है, जब आप कह देते हैं टू लर्न, तो ये आपका कौन सा बन जाता है? टू इन्फिनिटिव। Infinitive. दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, और हम इसको फुल इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव भी आप इसको बोल सकते हैं या आप इसको फुल इन्फिनेटिव भी बोल सकते हैं। उसके बाद एक होता है जो थर्ड इसकी टाइप है, वो कौन सी है? कौन मुझे बताएगा? ओके, थर्ड टाइप होती है बेटा स्प्लिट इन्फिनेटिव, ठीक है। अब स्प्लिट इन्फिनेटिव में क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे है ना, आई मेड हिम, ठीक है। इसी सेंटेंस के अंदर अगर हम बनाते हैं, आई मेड हिम लर्न टेंसेस, ठीक है, तो दैट इज बेयर इन्फिनेटिव। आई मेड हिम टू लर्न टेंसेस, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? दैट विल बिकम यू नो फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव। और अगर मैं कहता हूँ आई मेड हिम टू attentively, I made him to attentively learn tenses, तब आपने क्या किया? टू और उसका जो बेस फॉर्म था उसके दरमियान में कोई चीज आपने इंसर्ट कर दी। तो आपने क्या किया? आपने बेसिकली इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर दिया। गेटिंग द पॉइंट? सर टू Yes, sir. अटेंटिवली लर्न, ये सारा स्प्लिट इन्फिनेटिव होगा। यस, अब देखिए अब इसमें जो इन्फिनेटिव है ना वो आपका स्प्लिट हो गया। अब इसमें अटेंटिवली जो है दैट इज बेसिकली एन एडवर्ब। ओके सर। लेकिन ये जो यहाँ पे जो टाइप ऑफ इन्फिनेटिव है दैट इज स्प्लिट।
Okay, let's move forward. Yes. Quickly बस Yes, हम concepts को learn करते जाएंगे और आगे की तरफ move करते जाएंगे. अच्छा, they bought the tickets and boarded the train. That is compound. ठीक है, they bought the tickets, clause number 1 and boarded the train. ये क्या होगी? ये clause number 2 हो गई. अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा एक बच्चा मुझे अपना नाम बता दे. हारिस. ओके, अब्दुल्ला को ले लेते हैं. ओके, अब्दुल्ला ate pizza and chocolates. अब मुझे ये बताएं कौन सा सेंटेंस है? सिंपल 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 सेंटेंस. इसके अंदर तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं आया हुआ. यस सर. सर आगे एक क्लॉज. सिर्फ एक इंडिपेंडेंट होगा. Yes, Independent. there is a coordinating conjunction, but this coordinating conjunction is not between two clauses. That is between two nouns. ओनली सिंगल प्रिंसिपल क्लॉज यूज हो रहा है. Yes, एक सिंपल आपके पास प्रिंसिपल क्लॉज है. You have one verb, और उसके बाद ये जो बच्चे ना, लास्ट टाइम ये हुआ था कि 9th क्लास में ना 2 बच्चे ये गलती करके आए थे. वो कहते, मुझे आके कहते हैं सर इसमें तो ये कोऑर्डिनेट आपने बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहाँ पे आ जाएगा तो वो जो है ना वो अब वो सेंटेंस बन जाएगा कंपाउंड. तो हमने तो कंपाउंड, मैंने कहा बच्चे कंपाउंड क्लॉज होना जरूरी है. क्लॉज होना जरूरी है, ठीक है. या शायद मैंने उनको ये चीज इस तरह से क्लैरिफाई करके नहीं बताई थी. बाज दफा बच्चे होते हैं ना, वो आधा कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं करते. सो दिस मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट इज वेरी जरूरी, ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद लिरिक क्या होती है? लिरिक किस चीज की एग्जांपल है? लिरिक इज एन एग्जांपल ऑफ. अच्छा, सर फिर क्या होगा ये? दैट्स अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है. अब्दुल्ला एट पिज़्ज़ा, पॉजिटिव सेंटेंस. दैट इज अ सिंपल सेंटेंस. चले आगे चले. यस Yes, सर. यस yes, सर sir. Tim the terrifying tiger. That is alliteration. एलिट्रेशन. रेपिटेशन. हाँ, repetition of the same word. अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया एनाफोरा, ठीक है. एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा ये होता है कि आपने ना एक लाइन आपकी है और जैसे ना ब्लेसेड आर दोज, फिर नेक्स्ट लाइन पे भी ब्लेसेड आर दोज, यहाँ से भी ब्लेसेड आर दोज. सेम वर्ड या सेम फ्रेज जो है वो हर स्टैंजा की हर लाइन के स्टार्ट में रिपीट हो रही है, तो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं. सही है, द रेन में है ना एनाफोरा. हाँ, शायद द रेन वाली पोएम है. उसको फिर आपको देख सकते हैं ना, आप लोगों ने पोएम्स पढ़ी हुई हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसकी कोई ना कोई एग्जांपल आप. सर एनाफोरा दोबारा बता दें. सर इसमें ये होगा ना सर, जो सेम पोएटिक डिवाइस है ना वो 2 बार रिपीट होगी ना, दोनों लाइन में एक ही लगी हुई है. लाजमी नहीं विजुअल है इमेजरी सर. बेटा, वो लाजमी नहीं है कि वो पोएटिक डिवाइस ही हो. वो एक सिंपल लाइन भी हो सकती है, सिंपल वर्ड भी हो सकता है. सर हमारे सिलेबस में कितनी पोएट्री है? ये जब हम पोएट्री की बात करेंगे ना तो तब आप पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, ठीक है. सर कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? एजोनेंस होता है रेपिटेशन ऑफ द वोवल सर साउंड. कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स ये होता है option. रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स. ये बेसिकली एलिट्रेशन की ही फर्दर आप इसको बोल सकते हैं कि ये टाइप्स हैं. जब हम साउंड्स के लेवल पे जाके जब बात करते हैं ना, वर्ड्स के लेवल पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम सिंपली उसको क्या बोल देते हैं? उसको हम एलिट्रेशन बोल देते हैं, ठीक है. यस सर. अच्छा, सर ये एनाफोरा और रिपीटिशन में क्या फर्क है? रेपिटेशन कोई पोएटिक डिवाइस तो नहीं है बेटा. एनाफोरा तो ये होता है ना कि जैसे आप कोई भी एक, जैसे वो थी ना आपकी, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. तो वो एनाफोरा है. उसमें जो स्टार्ट है ना and miles to go, वो आपका क्या है? that is एनाफोरा. अच्छा, गॉट इट सर. he wanted a pair of puppies. तो अब इसमें a pair of puppies क्या है? नाउन फ्रेज. Yeah, that is a noun phrase. अब ये नाउन फ्रेज क्यों है? क्योंकि आप अगर इस पूरी फ्रेज को हटा देते हैं और इसकी जगह पे आप सिंपल एक नाउन भी लिख सकते हैं. he wanted me, ठीक है. he wanted pen, यस. he wanted चाय, ठीक है. he wanted आलू वाला पराठा, कोई भी चीज हो सकती है, राइट. एनीथिंग दैट कम्स एट द प्लेस ऑफ अ नाउन. तो फिर हम देखेंगे कि उसकी शेप क्या है. इफ इट इज इन द शेप ऑफ अ फ्रेज तो देन इट विल बी अ नाउन फ्रेज, एंड इफ इट इज इन द Noun. शेप ऑफ अ क्लॉज सो देन इट विल बी अ नाउन. नाउन क्लॉज. ठीक है. अच्छा, Yes. ये ऊपर टाइमर चल रहा होता है. जब लास्ट 10 मिनट्स रह जाएंगे ना तो उस हम जहां पे भी होंगे हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे और फिर मैं एमसीक्यूज के हवाले से आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं आपको समझाऊंगा. तो जैसे ओके सर. ही टाइमर चलना स्टार्ट हो तो आपने मुझे बताना है सर 10 मिनट रह गए, ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद एज द समर सन सेंट स्कैटर्ड रेज
through the maple and oak leaves overhead, the young deer stood frozen, making it almost impossible for the hikers to see it. तो अब यहाँ पे देखें, इस वर्ड फ्रोजन का वैसे तो मतलब होता है ना जमा हुआ, लेकिन इन द अबव लाइंस द वर्ड फ्रोजन मींस वेरी कोल्ड, विजिबल, No, sir. नॉट मूविंग या नॉट मेल्टेड, Not moving. नॉट मूविंग। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे फ्रोजन का वर्ड क्योंकि बोल्ड होगा, वो पूरा सेंटेंस पढ़े बगैर कहेंगे फ्रोजन, ये तो वेरी कोल्ड ही होगा, वेरी कोल्ड पे निशान लगा देंगे, तो ऐसा आपने नहीं करना। सर सही रीड करके सेंस समझे ना, किस सेंस में Yes. इस्तेमाल हुआ है पूरा। सेंस की बन रही है सर, नॉट मूविंग की बन रही है सन सामने। हाँ सेंस बेटा देखिए, सेंस तो आपकी तभी बनेगी ना जब आप पूरी लाइन पढ़ेंगे। तो सिंपल Yes, फ्रोजन sir. का वर्ड देखेंगे तो फिर तो सिंपल फ्रोजन के लिए वेरी कोल्ड भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, ही सिट बिसाइड द वॉल, तो अब इसमें बिसाइड क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब, ठीक है, दैट इज एडवर्ब। ही सिट वेयर, ही सिट बिसाइड द वॉल। Beside the wall. एडवर्ब। अच्छा, उसके बाद सेलेक्ट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर्मूलाए, तो फॉर्मूलाए का जिस तरह हमने पढ़ा था ना अभी, फंगस वगैरह वगैरह, तो फॉर्मूलाए जो है दैट इज द प्लूरल ऑफ फार्मूला। फार्मूला इज सिंगुलर एंड फार्मूला का फिर प्लूरल क्या है, फार्मूलाए है, ठीक है। अल्कली का अल्कलाए, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से द बुक विच ही गेव मी इज वेरी इंफॉर्मेटिव। अच्छा, अब इसमें मुझे बताएं कि कौन सा सेंटेंस है, Complex sentence. दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों? अब इसमें मुझे बताएं कि इसमें मेन क्लॉज कौन सी है, The book is very The book. informative. Which वेरी he गुड, gave. मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, द बुक इज Informative. Is very informative. इंफॉर्मेटिव। अब जो मेन सेंटेंस है उसके ऊपर मैंने बार लगा दिए, बार में कर दिए, और जो सबऑर्डिनेट सेंटेंस है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, विच ही Which he gave me. अब मुझे ये बताएं कि ये जो विच ही गेव मी है, ये तो ठीक है, ये समझ आ गया कि ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो एक मेन एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। मुझे ये बताएं कि ये जो क्लॉज है ये सेंटेंस के अंदर क्या बन रही है, Adjective. गुड, वेरी गुड, दैट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, दैट इज व्हाट, दैट इज एन Adjective clause. अच्छा, एडजेक्टिव क्लॉज की ना दो टाइप्स होती हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, जिसको हम इसको सिर्फ आप सुन लें कि खुदा न खास्ता अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको एटलीस्ट जो है वो पता हो कि हमें ये टीचर ने ये बात बता दी थी। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल होती है उसको हम रिस्ट्रिक्टेड क्लॉज भी बोलते हैं, और जो नॉन इसेंशियल होती है उसको हम नॉन रिस्ट्रिक्टेड भी बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन से, ठीक है। अच्छा, अब जो इसेंशियल क्लॉज होती है ना, वो एक ऐसी एडजेक्टिव क्लॉज होती है जिसके बगैर, मतलब जो जरूरी हो जाती है सेंटेंस के अंदर ना, वो उसको मतलब नाउन के साथ उस एडजेक्टिव क्लॉज का आना बहुत जरूरी होता है। और जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड क्लॉज होती है उसमें क्या होता है, उसमें उसके बगैर भी सेंटेंस जो है वो आपका कंप्लीट हो सकता होता है। अब इसको चेक करने का क्या तरीका होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आप इसको लर्न कर लें, सुन लें कॉन्सेप्ट, ज्यादा इस पे आपको मगजमारी करने की, ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आपको एज अ बैकअप प्लान आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि अगर आपसे वो पेपर में इस तरह से कोई पुट्ठा सा क्वेश्चन पूछता है, तो जो अगर आपके पास नाउन के फौरन बाद एक कॉमा अगर आपको नजर आता है बिटवीन द ये आपकी मेन क्लॉज थी, द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव, तो दरमियान में जो क्लॉज है इसको अगर कॉमास के जरिए सेपरेट किया गया, सो दिस मींस कि इट इज अ नॉन इसेंशियल नॉन रिस्ट्रिक्टेड एडजेक्टिव क्लॉज। सर ए पॉजिटिव, पॉजिटिव जो होती है ना, पॉजिटिव जो फ्रेज या पॉजिटिव क्लॉज जो है, पॉजिटिव ही आप इसको कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम ज्यादातर फ्रेजेस या नाउन्स में यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव होता है उसमें हम यस दैट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। अब उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे कायदे आजम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो अब उसमें वो क्या हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव फ्रेज बन जाएगी, पॉजिटिव नाउन बन जाएगा। तो यस पॉजिटिव भी आप इसको कहते हैं, ठीक है, बट पॉजिटिव से ज्यादा हम जो एडजेक्टिव है उसके लिए हम पॉजिटिव से ज्यादा हम एसेंशियल या नॉन एसेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। सर एक एग्जांपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की भी दे दें। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल दे दूं? टाइमर लग। अच्छा, बस ये 15 सेंटेंसेस मुकम्मल करके फिर मैं आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल देता हूं, और फिर उसके बाद जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला आपको बताऊंगा। ओके सर। अच्छा, उसके बाद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज्ड फॉर एडिंग इंफॉर्मेशन? फर्दरमोर। अच्छा, उसके बाद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट यस? उधरतन ये सेंटेंस भी आ गया। दिस इज द कांसेप्ट व्हिच बेसिकली आई हैड टू टीच यू।
Which one of the following sentence has the correct order of adjective? जी, अब मुझे बताएं कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को आप किस तरह याद रखते हैं? There are like हाँ Nosascom. yes, nosascom, ठीक है. What is nosascom? Number, opinion, Determinant, Okay. opinion, size, age, shape, color, color, material. origin, material, purpose. Yes. अच्छा, अब बेटा यहाँ पे शायद गलत मार्क हुआ है बिकॉज़ ब्यूटीफुल इज एन ओपिनियन, लेकिन बिग पहले आ रहा है ब्यूटीफुल। अच्छा, इसको चेक करते हैं ना. अब जो मैं बच्चों को फॉर्मूला बताता हूँ, दैट इज आपने क्या बताया था? nosascom. Yes sir. ओके, आप इसमें nosach में फिर ये होता है कि आप क्वालिटी को मिस कर जाते हैं. So it's basically 1q sashcom. 1 is for numbers, ठीक है, या आप इसको n Yes. sashcom कर लें या 1q sashcom कर लें, that is totally up to you. q is for quality and s is for size, a is for age and sh together is for shade and c is for color, o is for origin, m is for material and p is for purpose. ठीक है. आप इसमें देखें he has a big क्या है? that is size. तो साइज हमारे पास ऑर्डर में पहले आ रहा है, ठीक है. उसके बाद ओल्ड क्या है? एज है. साइज के बाद एज है, ठीक है. आप इसमें देखें ब्यूटीफुल. अब ब्यूटीफुल क्या है? दैट इज अ क्वालिटी. तो ये कहाँ पे आना चाहिए था? पहले. यस. सो ये कंसर्न किसने रेज किया था? अभी किसी बच्चे ने कहा था कि सर ये गलत है. मैंने जी, गुड. फातिमा. ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू. All right, so that is the order that you have to follow. अब वहां पे आप रट्टा लगाने बैठ जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. आप सिंपली इसको बेशक कच्ची पेंसिल के साथ किसी जगह पे लिखें या किसी भी जगह पे आप इसको याद कर लें और इसमें से आप क्या करते जाएं, चेक करते जाएं, ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम इसको फॉलो करते हैं, he has a beautiful. जी, अच्छा, अब अगर हम इसको देखते हैं, he has a beautiful old big silver ring, तो ये भी हमारे पास ठीक नहीं है, ठीक है. he has a beautiful अब आपके पास आ जाएगा क्या? adjective of quality, ठीक है. और old आपके पास क्या आ जाता है? age. और उसके बाद big क्या है? size है. तो अब इसमें होना क्या चाहिए कि size पहले होना चाहिए और age क्या होना चाहिए? बाद में होना चाहिए. अच्छा, similarly he has a silver. अब इसमें silver क्या है? that is material, ठीक है. तो ये बाकी सारी चीजें इसके बाद आ गई हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक. अच्छा, उसके बाद he has an old big. तो अब इसमें देखें old जो है that is age और फिर big क्या है? that is size, ठीक है. तो ये भी ठीक नहीं हो Sir, सकता. time is finished now, I think. ओके, बस मैं इसको खत्म कर रहा हूँ. तो he has a big old. अब ब्यूटीफुल को यहाँ से अगर आप निकाल देते हैं, he has a big old silver ring, तो फिर आपका सेंटेंस ठीक हो जाता है. लेकिन this it should be actually he has a beautiful big old silver ring. So, फिर आपका ये जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है ये आपका क्या हो जाता है? अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, या जो फार्मूला आप बता रहे थे उसके अकॉर्डिंग भी ये ठीक हो जाता है. अच्छा, एक तो चीज मैंने आपको ये बतानी थी. और फिर उसके बाद he cut the branch of the tree, which tense is it? तो he cut the branch of the tree, तो cut इसमें है, तो then it is Past tense. past, simple past tense, ठीक है. अच्छा, सर कट की तो reference फर्स्ट यहाँ फॉर्म पे। भी कट है. जी, सर कट की तो फर्स्ट फॉर्म भी कट है, फिर हमें कैसे पता लगेगा? अगर फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो फिर कट्स होता, कट्स होगा ना, सब्जेक्ट वर्ब Yes, sir. एग्रीमेंट. ठीक है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फिर क्या होता है? ये ही कट्स हो जाता, ठीक है. ओके सर. अच्छा, ओके सर, गॉट इट. ठीक है, गॉट इट. यस सर. तो मैंने आपको ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो है इसके हवाले से मैंने आपको बताना था कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने जो है वो इस तरह से अटेम्प्ट करना है. और उसके तो अगर ये बाद पास्ट परफेक्ट ये होता, अगर ये पास्ट परफेक्ट होता, फिर क्या चीज? अगर ये चीज पास्ट परफेक्ट होती तो फिर क्या होता? फिर बेटा उसके साथ जो परफेक्ट टेंस होता है उसका जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज हैज, हैव, हैड. अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसमें हैड होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हैज, हैव होता. अगर होता ही हैज वर्ब की थर्ड कट, फॉर्म. अगर होता ही हैज कट, तो ही हैज कट में फिर क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता. अगर ही हैड कट होता तो फिर वो क्या हो जाता? वो पास्ट परफेक्ट हो जाता. सो दिस इज हाउ वी चेक के जो सेंटेंस है उसकी कौन से टेंस है? उसकी जो टेंस है या उसकी जो सेंस है वो क्या बन रही है, ठीक है. अच्छा, तो फ्रेजेस और क्लॉजेस जो हैं
उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेजेस और क्लॉजेस में से आपको क्वेश्चन आता है। जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है इसको आपने इस तरह से याद रखना है। और इन सिंपल जो फ्रेजेस और क्लॉजेस हैं उसका जो सिंपल सा फार्मूला है वो ये है कि आप सेंटेंस जो है उसके अंदर चेक करें, ठीक है, कि वो पूरी फ्रेज या पूरी क्लॉज जो है वो किस वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर रही है, किस जगह को वो, किस पोजीशन को वो ऑक्यूपाई कर रही है। क्योंकि आपका जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है दैट इज एसपीओ, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आप उसमें देखें कि अगर वो सब्जेक्ट की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रही है फ्रेज, तो वो नाउन फ्रेज होगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर ऑक्यूपाई कर रही है तो वो क्या होगी, अगेन नाउन फ्रेज होगी या नाउन क्लॉज होगी। अदर देन दैट, अगर इन तीनों पोजीशंस के अलावा किसी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रही है, वो नाउन है, सॉरी वो फ्रेज है या क्लॉज है, तो फिर दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो वो क्या होगी, या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज होगी, या फिर वो क्या होगी, एडवर्ब फ्रेज, या फिर क्या होगी, वो एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। अच्छा, फिर उसके वो आप कैसे चेक करते हैं, वो आप ऑब्वियसली इस तरह से चेक करते हैं कि अगर तो वो जो फ्रेज या क्लॉज है, अगर वो नाउन को फर्दर मॉडिफाई कर रही है, नाउन को, ठीक है, नाउन को अगर वो मॉडिफाई कर रही है तो फिर वो क्या होगी, वो एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। और अगर वो वर्ब के हवाले से फर्दर मॉडिफिकेशन दे रही है, एक्शन के हवाले से, तो फिर वो क्या होगी, वो एडजेक्टिव हो जाएगी। सर नाउन फ्रेज मतलब प्रोनाउन से चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, नाउन फ्रेज पूरी प्रोनाउन से चेंज हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ कि गुड लुकिंग बॉय वाज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, ठीक है। तो आप इसमें देखें ना, अ गुड लुकिंग बॉय, ये क्या है, दैट इज अ होल नाउन फ्रेज। तो मैं यहाँ पे सिंपली कह सकता हूँ कि ही वाज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, शी वाज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, ठीक है। तो एक नाउन फ्रेज को, इवन एक पूरी नाउन क्लॉज को भी आप एक प्रोनाउन के साथ जो है वो कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फैटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2 मिनट है, तो मैं क्विकली आपको बता दूं। अगर तो आपके पास जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं लिखता हूं कि ही किल्ड हिमसेल्फ, तो अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट जो है, subject is the object of the sentence as well। तो अब इस सूरत में जो himself है that is a reflexive pronoun, that is what, a reflexive pronoun। लेकिन अगर object कोई और हो, जैसे he himself killed the snake, तो अब इसमें क्या है, snake जो है that is the object, और ये जो himself है ये that is just there for the sake of emphasis, to emphasize इसको, हाँ, that is there just for the sake of emphasis। तो इस सूरत में क्या होगा, ये जो himself है that is an emphatic pronoun। अच्छा, जो दूसरी चीज जो मैंने आपको समझानी थी, that is the difference between direct and indirect object। जब आप सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि अली sent me a pen, अब इसमें वर्ब के फौरन बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, मी भी और अ पेन भी, तो जो वर्ब के फौरन बाद आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ पेन जो है दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ पेन जो है दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को, ये जो इनडायरेक्ट है मतलब वर्ब के फौरन बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर कभी आता है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, आपको जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ आपको टू इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको लगाना पड़ेगा अली सेंट अ पेन टू मी, टू मी, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपके पास फिर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी बाद में आएगा तो वो फिर टू के साथ आएगा, ठीक है। हाँ, अब आपको ये चेक करना होगा कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, आप उसको उसके ऊपर उंगली रख के देखें। अगर सेंटेंस फिर भी ठीक